Good morning, students. Today we are going to start our class with a new and important topic, that is tense. Tense, you have done a few kinds of tenses you have done in class 3 also. So let us get started. Before we begin the kinds of tenses, let us recall what a tense is. Tense means the time of an action. कोई action कब किया गया या किया जाना है या अभी किया जा रहा है, तो उसका action का time बताते हैं हमें tenses. So that is called, the time of action is called tense. Okay, so next we have three types of tenses. आपको याद होगा. So the three types of tenses are present tense, past tense and future tense. Now इन्हीं तीनों tenses में the first kind is indefinite or simple tenses. Then we have continuous tenses and we have then perfect tenses. So we have present simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Similarly, we have past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense. And if we have to talk about the future, then we have simple future tense, future continuous tense and future perfect tense. Okay, but in today's class we will be covering only the kinds of present tense. जितने भी present tense के तीनों kinds हैं आज हम वही cover करेंगे. So please listen carefully and try to understand. Okay, now first of all we will discuss about simple present tense. जो simple present tense है हम उसको present indefinite tense भी कहते हैं. Indefinite tense याद रखना है, simple tenses or the indefinite tenses are the same. So where is simple present tense used? This is the first and important thing. First is a simple present tense is used to express a habitual action. What is habitual action? Habitual means जो हमारी हैबिट होती है. ठीक है, कुछ काम इस तरह के होते हैं जो हमारी हैबिट बन जाती है और उन्हें हम बार बार करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ हैबिचुअल एक्शन. लाइक रैबिट्स ईट कैरेट. रैबिट्स क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं, उनकी हैबिट है. ओके, आई गो टू टेम्पल एवरी डे. मैं रोज़ टेम्पल जाती हूँ. नाउ हियर इट कैन बी टेकन एज अ हैबिट ऑल्सो, या आप इसको कह सकते हैं कि रिपीटेड एक्शन है. रिपीटेड एक्शन मीन्स जो आप बार बार करते हैं. सो जो एक्शंस आप बार बार करते हैं एक रूटीन में करते हैं, चाहे वो आप रोज़ करें, चाहे वंस इन अ वीक करें, चाहे वंस इन अ मंथ करें, लेकिन आप उनको बार बार करते हैं, उन्हें हम रिपीटेड एक्शंस कहते हैं. और इस तरह के एक्शंस के बारे में whenever we talk about such actions we express them using the simple present tense. Alright, and the second one is to express the universal truth. Now what is universal truth? Universal truth means कोई ऐसी बात जो पूरी दुनिया मानती है, जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि झूठ है. For example, the sun rises in the east. So everybody in the whole universe knows कि sun जो है वो east direction से ही rise करता है. Can anybody say कि नहीं करता? No, because this is universal truth, right? Another example is a magnet attracts iron. मैग्नेट जो है वो आयन को अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो आपने देखा है, आप कोई कह सकता है कि नहीं करती है, दैट इज़ रॉन्ग, वो तो आप झूठ बोल रहे हैं. सो यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स ऐसी बातें जिसको सारी दुनिया मानती हैं एंड नोबडी कैन से कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है. ओके, सो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो हमारी हैबिचुअल एक्शंस हैं, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है हमारा, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई रिपीटेड एक्शन है जो हम बार बार करते हैं. दीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ऑलराइट, now we'll see what are the rules of simple present tense. Simple present tense के rule क्या हैं? So for the singular means अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, subject जो है हमारा sentence में वो singular है, तो हमारा क्या rule रहता है? Subject, that is he, she, it. अब यहाँ जो सिंगुलर है, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वर्चुअल क्लास ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड यू आर डूइंग दिस फ्रॉम क्लास 2. तो थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन, राइट. सो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, राम, सीता,
ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस में वी विल राइट डाउन द सब्जेक्ट, देन वी ऐड टू इट प्लस V1. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, प्लस S और ES. दैट मीन्स कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड हम S ऐड करेंगे या फिर ES ऐड करेंगे. जैसे आपको बहुत बार आपने पढ़ा है कुछ वर्ड्स, जैसे लुक्स वर्ड है. लुक्स वर्ड कैसे बना है, लुक के साथ S लग के बना है, राइट. सो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म लुक थी और उसके बाद क्या लगा दिया हमने S, सो इट बिकेम लुक्स. And then we have the object. Okay, so I'll repeat again the rule for simple present tense. In case the subject is third person singular, तब हमारा rule क्या रहता है, subject plus verb की first form plus S or ES and then the object. Alright, we'll take some examples and then it would be more clear to you. The first example is he plays football. Now he here is third person singular, the subject, and then we have verb. Verb is plays. So plays word, how is it formed? It is formed by verb का first form play plus S. ऐसे ही बनाना plays. So he plays football. Alright. Next. It rains heavily in August. It rains heavily in August. Here the verb is rains. So rains कैसे बना हमारा, rain के साथ S लग के, right? So it here is the subject and rains कैसे बना, verb की first form plus S. Okay. Now look at the third one. Sonu reads a book. Here Sonu is the subject, again third person singular है Sonu, and then we have the verb की first form read plus S and then the object a book. Okay, so this is how we form the sentence in using simple present tense when the subject is third person singular. Now let us talk when the subject is plural. अगर subject plural है तब क्या rule होगा हमारा. There is a slight difference. So अगर हमारा subject जो है वो plural है तब हमारा rule क्या रहता है, it becomes subject that is अब plural में I को भी हम plural वाले ही केस में ले लेते हैं, right. I, we, you, they. अगर इनमें से कोई भी हमारा subject है then we add to it only verb का first form. We do not add S और ES. इस केस में आपने हमेशा याद रखना है S और ES नहीं आता है. With the plurals we add only verb first form and then the object, right. Now I here आपको लगेगा कि singular, but remember कि I के साथ कभी S and ES वाले verbs नहीं आते हैं. So the first example is they play video games. Now here they is plural है, थर्ड पर्सन है, लेकिन है वो प्लूरल है. बहुत सारे लोगों के लिए हम दे यूज़ करते हैं. नाउ द वर्ब हियर इज प्ले एंड देन द ऑब्जेक्ट वीडियो गेम्स. नाउ इफ़ यू सी प्ले वर्ड अकेला आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वी हैव नॉट एडेड एनी एस और एस विद इट. अनदर एग्जाम्पल इज रोहन एंड संदीप वॉच टेलीविजन. Now here the subject is Rohan and Sandeep. So these are two people हैं तो it would be plural. तो इसीलिए when the subject हमारा यहाँ subject plural बन गया है, so we will not add S और ES with the verb. हमारा simple आएगा verb की first form, that is watch, and then the object will be television. I hope this much must be clear to you because आप ये बहुत बार कर चुके हैं. Now we will move to the present continuous tense. Now continuous tense, I always tell you people, जहाँ continuous आ गया, continuous का मतलब है कि वो काम अभी चल रहा है, वो अभी complete नहीं हुआ है. मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल द सेंटेंसेज विच आर दीज आर ऑल द एक्शंस दैट आर स्टिल गोइंग ऑन. जो एक्शंस अभी चल रहे हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं, राइट. अनदर थिंग, अगर हम हिंदी में इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो इनके एंड में हमेशा रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, right. So in sentences these sentences always end with रहा है, रहे हैं, रही है. Okay. Now we'll move further. Present continuous tense is used to express an action going on at that time of speaking. जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तब वो एक्शन अभी चल रहा है. So ऐसा कोई एक्शन अगर होता है जो अभी चल रहा है, हम उसको present continuous tense में लिखते हैं. Now let us take the example. I am cleaning the room.
इसका मतलब हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है मैं रूम क्लीन कर रही हूँ, यानी कि मेरा भी क्लीनिंग का जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सन जो है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ख़त्म नहीं हुआ उसका शाइन करना। थर्ड वन, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, बच्चे जो हैं वो पूल में स्विम कर रहे हैं, ऑलराइट, यानी कि अभी भी उनकी स्विमिंग जो है वो चल रही है, दे हैव नॉट स्टॉप्ड। सो ये तीनों ही सेंटेंसेस में यू कैन सी कि जो एक्शन है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ है। ओके, नाउ विल रीड अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि रूल्स क्या हैं उसके। So the rules for it are subject, first we have the subject, then we have is, am or are, plus verb की first form plus ing and then the object, right? Now इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे भी continuous word आ रहा है, continuous जहाँ पे आ गया वहाँ पे एक चीज़ always remember this thing कि वहाँ ing आना ही आना है, और ing verb की हमेशा first form के साथ आता है, कभी भी आप second और third form के साथ ing नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। So whenever you read the word continuous तभी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे इसमें वर्ब के साथ ing आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि हमेशा जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं जब उनके साथ ing लगाना है तो वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, दे ऑलवेज नीड अ हेल्पिंग हैंड, उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए अपनी चाहिए, और वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर कि जहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया वहाँ ing आना है, ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है और वो कभी भी अकेले नहीं आता, उसको हमेशा किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे इज़ आता है, इज़ किसके साथ यूज़ करना है हमने, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होगा, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, प्लूरल्स के साथ हमेशा आर यूज़ होता है। ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंस, she is dancing on the stage. Now here she is the subject, a third person singular है तो हमारा helping verb तीनों में से is am are में से क्या आएगा, is, okay, then ing फॉर्म यूज़ करना है हमने, डांस का ing फॉर्म बन जाता है dancing, ई नहीं आएगा, टेक केयर ऑफ द वर्ड्स, कई बच्चे ई लगा देते हैं, जो ई से एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम जब ing लगाएंगे तो ई रिमूव हो जाता है वहाँ से। सो शी इज़ डांसिंग on the stage, right? Okay, another example, the cat is drinking milk. Here the cat is the subject, again third person singular है cat, एक singular के बारे में बात हो रही है, is आएगा helping verb and then drink के साथ ing लग के it would become drinking milk. The last example, they are skating in the rink, राइट। नाउ दे here इज प्लूरल है तो इसके साथ हम कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर, ओके, दे आर एंड देन स्केट का ing फॉर्म बन जाता है स्केटिंग, अगेन इसमें भी ई को ड्रॉप कर देना है एंड ing लगाना है। सो दे आर स्केटिंग इन द रिंक, रिंक होता है जहाँ पे स्केटिंग रिंक होती है, जहाँ पे वो जो पूरा हॉल बना होता है जहाँ पे प्रॉपर फ्लोरिंग हुई होती है फॉर स्केटिंग टू बी डन। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Next, now this is something new for you and please be very attentive while listening to this. Now the third one that we have is present perfect tense. परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हमने एक्शन जो है वो अभी अभी ख़त्म किया है, अभी अभी फिनिश किया है, रिसेंटली अभी, हाँ, लाइक present perfect tense is used to express an action that has been completed recently. ऐसा काम जो आपका कंप्लीट हो गया है और अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले हुआ है ज़रा सी, या बिल्कुल अभी हुआ है। ओके, सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज वेन एवर द टीचर आस्क्स यू इन द क्लास हैव यू डन योर वर्क एंड योर आंसर इज आई हैव डन मैम, सो आई हैव डन मैम, यानी कि आपने अभी अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया। जब आप फिनिश करते हैं तभी आप टीचर को बोलते हैं ना आई हैव डन मैम, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क मैम। So this is the best example and you can relate to it. Now let us see some other examples here. I have just left the office. मैंने अभी अभी ऑफिस लीव किया है, लीव किया मीन्स मैं अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ, राइट। He has sung the song. उसने अभी अभी गाना गाया है, मीन्स उसका गाना जो है वो फिनिश हो चुका है, वो गा चुका है। राम and his friends have won the match. राम और उसके फ्रेंड्स ने मैच
जीत लिया है, अभी अभी जीता है, राइट, थोड़ी देर पहले जीता है या जस्ट अभी जीता है. नाउ अनदर वे टू रिकॉग्नाइज परफेक्ट टेंसेस को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ ये सेंटेंसेस एंड होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट. जैसे हमारे कॉन्टिन्यूस वाले फिनिश हो रहे थे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे ही हमारे परफेक्ट टेंसेस फिनिश होते हैं चुका है, चुके हैं. ठीक है, जैसे वो अभी अभी गाना गा चुका है, right? So this is how you need to see how the perfect tenses are made. Now we'll take some examples, and first before taking the examples let us see what the rules of present perfect tense are. The rules for the present perfect tense, again इसमें singular और plural का rule different रहता है. Singular means third person singular, alright. So जब हम tenses में बात करेंगे ना singular, तब हमेशा वहाँ पे third person singular की हम बात करते हैं. So it would be subject यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस हैज़, उसके साथ क्या आना है, हैज़ आना है और कोई वर्ड नहीं आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ परफेक्ट टेंसेस आ गए वहाँ आपने याद रखना है कि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी. उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़, हैव, हैड, वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा थर्ड यूज़ होगी. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा ING फॉर्म यूज़ होनी है, ठीक है, वैसे ही परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है. जहाँ परफेक्ट वर्ड आ गया ना टेंसेस में, वहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, लेकिन इसका जो हैज़, हैव है वो चेंज हो जाने हैं. ऑलराइट, और वो कैसे चेंज होंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आएगा हैज़. सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो अगर मैं कहती हूँ ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया, तो यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके बाद हैज़ आएगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात कर रही थी आई हैव डन माई वर्क, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई है डन, लेकिन हैज़ और हैव डिफरेंट हो गया. ओके, सो विल सी एन एग्जाम्पल हियर. शी हैज़ रेड द बुक, उसने वो बुक पढ़ चुकी है, मतलब उसने अभी अभी बुक पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है. ऑलराइट, नेक्स्ट, सिड हैज़ प्लांटेड अ ट्री, सिड ने एक ट्री अभी अभी प्लांट किया है. सो इन दोनों ही सेंटेंसेस में शी और सिड दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे, हैज़, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लूरल्स, अगर हम प्लूरल की बात करें जैसे हमने अभी पहले भी किया था डिस्कस, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल में आ रहे हैं, राइट. अगर हम कोई हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल यूज़ हैव, तब हम हैज़ नहीं यूज़ करते. क्या आप कभी आई के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, आई हैज़ डन माई वर्क, नो, आप हमेशा बोलते हैं आई हैव डन माई वर्क, राइट. सिमिलरली यू के साथ भी हमेशा यू हैव आता है, दे हैव, वी हैव. सो इन सब वर्ड्स के साथ, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा, बट वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की फॉर्म थर्ड ही आएगी. सो लुक एट द एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन हियर. दे हैव बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया है, अभी अभी बनाया है. ओके, नेक्स्ट, रामा एंड रिया गिफ्टेड मी अ ड्रेस, सॉरी, रामा एंड रिया हैव गिफ्टेड मी अ ड्रेस, तो रामा और रिया ने मुझे अभी अभी एक ड्रेस गिफ्ट की है. सो यहाँ पे हमारे जो दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्लूरल हैं. फर्स्ट में दे भी प्लूरल होता है, एंड राम एंड रिया टू पर्सन्स हैं, तो अगेन दैट इज़ प्लूरल. ओके, सो सिंगुलर में हैज़ आना है, प्लूरल में हैव आना है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है हमेशा परफेक्ट टेंसेस में. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको मैंने कुछ, आई हैव गिवन यू अ वर्कशीट, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे इन योर बुक, राइट, एंड देन विल डिस्कस इट द सेम टॉपिक इन द वर्चुअल क्लास ऑल्सो. सो प्लीज़ कीप योर नोटबुक्स विद यू and have a great day. Thank you.